Hey guys, welcome back to my channel. This is Anand and you're watching Physics Craze. Hope all of you are doing great and best of luck for your preparation also. So बहुत सारे लोगों के डिमांड की वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट वी शुड स्टडी और व्हाट वी शुड नॉट एंड दिस वीडियो विल स्पेसिफिकली फॉर जैम सिलेबस ओनली. ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई बिकॉज आई हैव जस्ट डन माई लाइव सेशन. And if you are new on my channel, then do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification every time I upload or I will be live on the YouTube. So let's move ahead. So our today's topic, what is today's topic? We have detailed syllabus for SSP electronics. So in this video we're gonna talk about only SSP and electronics because we have to discuss in detail. So I'll make one series for separate subjects only. The first is SSP and electronics. Now in this I'll be gonna explain what to study and what to not. The second thing, this syllabus is only for IT JAM entrance, and the third is all the points I'll gonna discuss is according to me only. Okay, so we'll move ahead with the points. First of all, we'll discuss the solid state syllabus. Okay, so in solid state syllabus from the official JAM website you will see that आपको solid state physics में इतने सारे topics पढ़ने होंगे. What topics? Crystal structure, Bravais lattices and bases, Miller indices, X-ray diffraction and Bragg's law, and intrinsic and extrinsic semiconductor, variation of resistivity with temperature, Fermi level. These all topics are covered under solid state physics. Now we'll discuss one by one. In crystal structure, what you have to study in crystal structure, we know that simple cubic structure, body centered, PCC, face centered, FCC structure. You have to study all the details of these three structure. It means number of unit cells or number of atoms per unit cells, number of atoms per unit cells, packing fraction, as we know packing fraction. After that, number of nearest neighbor एंड नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकेंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर. यहाँ तक आपको इसे स्टडी करनी पड़ेगी ओनली फॉर दिस थ्री स्ट्रक्चर्स. आफ्टर दैट यू हैव टू मूव अहेड विथ Bravais lattices. We know that we have 14 Bravais lattices, so you just have to study those 7 crystal structures and the values of alpha, beta, gamma and their base lengths. After that you have to move with Miller indices. This is very important because you will get one easy question from Miller indices. If it is asked, then the question will be very easy and it will be like you will have some coordinate axis and in that you will have some plane, okay, like this. And this plane have some coordinate points like a comma 0 and a comma 0 or a comma 0 0 comma a and a comma 0. This will be 0 comma 0 comma a, like this. So you just have to describe what are the Miller indices for this plane. So if you have done with Miller indices, after that you have to study some of the basic structures of NaCl. Just remember this, NaCl. You have to remember the number of nearest neighbor, first, second, third, the distances, and along with NaCl you have to study for CSCl also, cesium chloride, hexagonal close pack structure and diamond cubic structure. So this much of the structure you have to study extra, and you have to remember all the relations in hexagonal close pack structure. You will have some relation between A and C, और आपको NaCl and CSCl में भी number of nearest neighbor, ये सारे जो relations है, ये सारे जो values है, you have to remember those and you can remember it using logic. I'll gonna cover those in my separate videos of SSP and electronics, so don't worry. अगर आप किसी बुक में से पढ़ के इसको नहीं समझ पा रहे हो तो you can watch my video, I'll explain it. What is our next topic? It is X-ray diffraction and Bragg's law. X-ray diffraction and Bragg's law is very important. As we know that X-ray diffraction and Bragg law, we have formula 2d sin theta equals to n lambda, okay, n lambda. And here we get some peaks for constructive interference. So d is related to, d is called interplanar distance. इफ़ यू स्टडी SSP आपको पता चलेगा कि D को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस. और ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस किससे डायरेक्टली रिलेटेड? इट इज़ रिलेटेड विथ मिलर इंडाइसेस. ओके,
ये मिलर इंडाइसेस से रिलेटेड है। तो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपका ये जो फॉर्मूले में पीक्स बनते हैं, अगर आप लोग इसे स्टडी करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। हमें कुछ ऐसे ग्राफ बनाना पड़ता है जिसमें इंटेंसिटी और यहाँ पे हम लोग को डिफ्रैक्शन एंगल कंसिडर करना पड़ता है, और हम लोग ऐसे कुछ पीक्स बनाते हैं। ऐसे कुछ पीक्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो इन केस ऑफ यूजिंग ब्रैग्स लॉ हम लोग को पता रहना चाहिए कि हम जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं उसके किस मिलर इंडाइसेस के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सो ब्रैग्स लॉ में सीधे फॉर्मूला रटाया होना ईजी है, बट ये जो केसेस हैं कि एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन से मिलर इंडाइसेस के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, बीसीसी के लिए कौन कौन से मिलर इंडाइसेस के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड सिंपल क्यूबिक के लिए भी, ओनली फॉर दिस केसेस एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, सो ये जो केसेस हैं आपको याद रहने बहुत ज़रूरी है कि कौन से मिलर इंडाइसेस के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, बिकॉज इट विल हेल्प टू कैलकुलेट थीटा। मैं अपने सीरीज़ में जब ये वीडियो बनाऊंगा तो आई विल कवर दैट टॉपिक। एक क्वेश्चन भी है जो जैम 2014 कानपुर में पूछा गया था, वहाँ पे एफसीसी था एंड हम लोग को डिफरेंट मिलर इंडाइसेस का यूज़ करके थीटा का वैल्यू निकालना था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। Okay, so this is it for solid state, and we have to understand intrinsic and extrinsic semiconductors. We all know that the relations between number of holes and number of electrons, and after that variation of resistivity at temperature. We know that n negative temperature coefficient and positive temperature coefficient, also with variation of resistance or resistivity with respect to temperature for metals. आपको इसके ग्राफ्स दिखने हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इसके ग्राफ्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। वैसे तो आप देख के ग्राफ इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। आफ्टर दैट फर्मी लेवल, वी नो दैट कि फर्मी एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है और एक फर्मी फंक्शन भी होता है, फर्मी फंक्शन। सो ये फंक्शन का फॉर्मूला और फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट एच.सी. वर्मा की एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है नीचे, उधर आप जाके देख सकते हो कि जब आप पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हो तो उनका जो एनर्जी लेवल है, वो जो फर्मी एनर्जी लेवल है, कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करता है, एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। हमें कुछ इस काइंड का स्ट्रक्चर मिलता है फॉर पीएन इन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आप देखोगे वो वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके देखो। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं कभी कभी इस पर डिपेंडेंट आ जाते हैं, दैट्स वाई मैंने वो लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। सो दिस इज़ इट फॉर व्हाट वी से सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इतना सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए इनफ है। नाउ वी हैव टू मूव अहेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इन इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस वी हैव टू स्टडी पीएन जंक्शन डायोड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होगी, एंड हाउ वी यूज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप ऊपर देख सकते हो, आई बटन में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे उस पूरे लिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। आफ्टर दैट ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, ज़ीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज और उसका एप्लीकेशन मींस डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। डायोड में बस एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको करना है विच इज़ इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड करंट। इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड करंट एक होता है, वो आपको पता रहना चाहिए कि उसमें जितने भी टर्म्स हमने यूज़ किए क्या क्या है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी बीजेटी means transistors. We know that NPN and PNP transistor, but most of the cases जैम हमेशा NPN ट्रांजिस्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओनली NPN ट्रांजिस्टर, बट PNP ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो वेरी इजी। आई विल कवर दैट टॉपिक इन माई फ्यूचर वीडियो ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मोड, कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट, आपको इफ़ यू रिमेंबर आपने थोड़ी भी थियरी पढ़ी होगी, सो यू नो व्हाट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। दिस आर दी सम स्पेसिफिक वी कैन से साइंस जिसमें हम रेशियो ऑफ करंट यूज़ करते हैं, एंड यू शुड नो रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इन तीनों में रिलेशन क्या है
ये बस आपको पता रहना चाहिए। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम KVL कैसे लगाते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम KVL कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजिस्टर्स में पता रहनी चाहिए। आफ्टर दैट सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर, सिंपल ऑसिलेटर्स, ब्रैकहाउज़न कंडीशन, साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू मी आप क्या क्या पढ़ो। सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में आपको RLC नेटवर्क थ्योरी और LC RC नेटवर्क जो होते हैं उनके बारे में स्टडी कर लो, 12th स्टैंडर्ड में था। आफ्टर दैट आपको लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर, इसके बारे में स्टडी कर लो। आपके जो कपल्ड RC सर्किट थे ना अभी हमने पढ़ा, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर। आफ्टर दैट आप और क्या स्टडी कर सकते हो, आप नेटवर्क थ्योरी में मेश एनालिसिस समझ सकते हो, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये सारी टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और आफ्टर दैट डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जैम में और जेस्ट में भी कुछ काफ़ी हद तक। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज अगर आपको याद होगा, ये कंडीशन भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए ऑल द टाइम। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू कंप्लीट ओपैम्प एंड इट्स एप्लीकेशन। ओपैम्प देखो, ओपैम्प के बहुत सारे कंडीशंस हैं, मींस इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, आइडियल ओपैम्प, प्रैक्टिकल ओपैम्प। तो आपको ये जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग है, द बेसिक थिंग इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ओके, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इस दोनों केस में यू हैव टू स्टडी फॉर आइडियल एंड प्रैक्टिकल, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, sorry, ideal and practical in both the cases. After that you also have to remember the formula for gain for both of the op-amps, दोनों op-amps के दोनों conditions में gain का क्या formula होगा, how do we derive it, ये सारी चीज़ें आपको remember होनी चाहिए। After that बहुत सारे conditions होते हैं op-amp में, जैसे we can also use amplifier as adder circuit, adder, subtractor, integrating circuit, anti-logarithmic circuit, and after that comparator, differentiator and voltage follower circuit। वोल्टेज, ये सारे मैं एकदम डिटेल्स में बता रहा हूँ, इतने ही टॉपिक्स आपको करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट एंड आफ्टर दैट एक्टिव, हाई, लो एंड ऑल पास फिल्टर। मींस जो भी आपने हाई, लो एंड ऑल पास फिल्टर पहले पढ़ा था नेटवर्क थ्योरी में, उसी में हमको क्या करना है, ओपैम्प ऐड कर देना है, सो इट विल बिकम एक्टिव, हाई, लो एंड ऑल पास फिल्टर। ओके, नाउ इफ़ यू डन विद दिस मच ऑफ द टॉपिक्स, आपको इसके बाद एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है। देखो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है पीक डिटेक्टर सर्किट, इसके बाद क्लिपर सर्किट, फिर क्लैम्पर सर्किट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेडी स्टेट एनालिसिस। मैं अपने सीरीज़ में सारे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इन BJT I forgot to mention here, you have to study 2 more circuits like self bias circuit, because most of the time इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, self bias circuit and DC लोड लाइन। आपको ये किस में कवर करना है, BJT में। बाकी अब आपका जितना भी नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड था, ओपैम्प वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव विथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी नो कि वी हैव टू स्टडी बूलियन अलजेब्रा 1-0 के फॉर्मेट में, बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम बोला है, बट नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बताया है, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वी नो, अगर आपको रिमेंबर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर and hexadecimal. So you should remember how to convert one system into another.
एक सिस्टम के नंबर को हम दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी एडिशन, ये तो हमको पता है 1 + 1 ऐड होकर 10 होता है, 1 0 होता है। एंड सब्ट्रैक्शन, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हमें लॉजिक गेट्स के बाद पूरा का पूरा जो उसका ट्रूथ टेबल है वो रिमेंबर होना चाहिए। एंड गेट, और गेट, ये सारे गेट्स कैसे काम करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सक्लूसिव और गेट। एक और है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसका जो इक्वेशन है और जिसका ट्रूथ टेबल है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टडी डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ, आप ये सारी चीज़ें वीके मेहता की बुक में देख सकते हो। डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके जो इक्वेशंस होते हैं हम उसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल डी मॉर्गन्स लॉ ऐसा बताता है ना कि a + b का प्राइम है, तो वी कैन राइट इट एज डॉट विद दिस a प्राइम डॉट b प्राइम। ओके, मतलब जो जॉइन वो है लाइन, उसको हम ब्रेक करके डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट्स है ये हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करने में यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल 2020 में एक क्वेश्चन था p बार q + q बार p, ऐसा कुछ करके समथिंग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने में डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ आता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद रखना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। Last but not the least, you have to study maximum power transfer theorem. Power transfer theorem, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थियरम, किसी सर्किट में इफ़ यू हैव सम वोल्टेज सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, तो उस लोड रेजिस्टेंस के अलोंग आपका मैक्सिमम पावर का कितना, कौन से कंडीशन में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा, दैट कंडीशन इज़ इंक्लूडेड इन मैक्सिमम पावर थियरम। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। होप मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड किया हो ये सारे सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग को कुछ भी कम लगा हो तो डू कमेंट, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट ए थम्स अप। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देन डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज मैं हमेशा रेगुलर लेक्चर अपडेट डालते रहता हूँ। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।